إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم صدق الله العظيم. ذی قدر ذی وقار سامعین، انسان دنیا میں جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے انسان ہیں وہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عشق اور محبت ہے، اور یقیناً اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کا ہونا ایمان کی نشانی اور علامت ہے. بھائیو، ایمان کا معیار بھی یہی ہے کہ انسان جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت والہانہ انداز میں کرے. لیکن کیا ہمارا یہ دعویٰ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عشق کرتے ہیں، کیا یہ دعویٰ صحیح ہے؟ کیا اس کے مطابق ہم زندگی بسر کر رہے ہیں؟ یہ ذرا آج فکر کرنی ہے آج کی اس مجلس میں، جمعہ کی نشست میں، کہ آیا میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، اور یہ جو ہمارا دعویٰ ہے کیا یہ بالکل ایگزیکٹ صحیح دعویٰ ہے؟ کیا یہ جو اس کے اصول و ضوابط ہیں ہم ان پر پورا اتر رہے ہیں؟ تو بھائیو توجہ سے سنیے گا اور اپنی اصلاح کیجیے گا. مولوی یا واعظ یا خطیب کے ذمے کسی کی اصلاح نہیں ہے. خطیب اور واعظ کے ذمے ہوتا ہے کہ سامعین کے دلوں پر، ضمیروں پر دستک دینا، دروازہ کھٹکا دینا کہ بھائی اس طرف بھی ذرا غور کرو. اور اصلاح بندہ اپنی آپ کرتا ہے، دوسرا اصلاح کرے تو وہ تنقید کہلاتی ہے، خود بندہ اصلاح کرے تو وہ اصلاح ہوتی ہے. بہرحال آج کا ماحول چونکہ ایسا ہی ہے، اس لیے میں بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم نے توجہ کرنی ہے، غور کرنا ہے، اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت کو معیار قرار دیا ہے ایمان کے لیے. ایمان تب معتبر ہے جب عشق رسول اور عشق خداوندی موجود ہے. اب عشق کیا چیز ہے؟ دعویٰ تو ہے لیکن سمجھنا بھی ہے. عشق کیا چیز ہوتی ہے؟ عشق ہمیشہ وہی ہوتا ہے جس وقت کوئی بندہ کسی کو اپنا معشوق سمجھتا ہے، کسی کو، چاہے وہ خدا کی ذات کو معشوق سمجھے اور اللہ سے عشق کرے، رسول اللہ کو معشوق سمجھے اور رسول اللہ سے عشق کرے، یا خدا نخواستہ کسی اور سے وہ دیوانہ وار محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے اور اس کا عاشق بننا چاہتا ہے. تو بھائیو عشق کے لیے ضروری ہے کہ عاشق معشوق کی مرضی کے مطابق، معشوق کی مرضی کے مطابق عاشق زندگی گزارے، تب یہ سچا عاشق ہے. ایسے ہی ہے نا؟ اگر معشوق کی ڈیمانڈ اور مطالبہ اور ہے اور عاشق اس کی ڈیمانڈ اور مطالبے کو پورا نہیں کرتا تو یہ بندہ دعوی عشق میں جھوٹا ہے، یہ فراڈیا ہے، یہ دھوکے باز ہے. اور اگر دعوی عشق کے اندر معشوق کی ڈیمانڈ کو پورا کیا جاتا ہے تو حقیقتاً یہ سچا عاشق کہلائے گا. اس کو آپ جس نظر سے بھی دیکھیں، ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے نا، ہر بندے کی. کوئی بندہ کالی اینک لگا لے، ہر چیز کالی نظر آئے گی. سبز لگا لو، سبز نظر آئے گی. پیلی لگا لو، پیلی نظر آئے گی. سفید لگا لو تو ہر چیز اوریجنل نظر آئے گی. بہرحال سفید نظر لگا کے، اینک لگا کے ذرا بیٹھیے گا. اس کو مجازی عشق میں نے کبھی لے کے نہ جانا، وہ عشق نہیں ہوتا، وہ بدماشی ہوتی ہے.
میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، مولانا مکی صاحب جو مدرس حرم ہے، حرم کے اندر مدرس ہیں، درس دیتے ہیں اردو سپیکرز کے لیے، ان سے کسی نے سوال کیا، پرچی بھیجی بھی، حضرت ہمارے بھائی کو کسی کا عشق چڑھ گیا ہے، سمجھ گیا نا بات کو، ہمارے بھائی کو کسی کا عشق چڑھ گیا ہے، اس کے لیے کوئی علاج یا وظیفہ بتائے۔ حضرت صاحب نے بڑا پیارا علاج بتایا، فرمایا اپنے بھائی کو 5 دن کے لیے ایک کمرے میں قید کر دو، کھانے کے لیے کچھ بھی نہ دو، صبح و شام اس کو 2-4 اچھی طرح چھتر لگاؤ تو انشاءاللہ عشق نکل جائے گا۔ یہ بدماشی ہوتی ہے، عشق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ تو علیحدہ موضوع ہے یار، کسی کی بہن بیٹی سے تو عشق کرے گا تو تیری بہن بیٹی بھی تو ہے نا، کوئی اس سے بھی کرے گا، پھر یہ تو کرند لاند، ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ تو دنیا ہے، مکافات عمل ہے۔ کسی کے بارے میں برا سوچو گے تمہارے بارے میں بھی برا سوچنے والے پیدا ہو جائیں گے، کسی کے بارے میں اچھا سوچو گے تو ہمارے بارے میں بھی اچھا سوچنے والے اللہ پیدا کر دے گا، کسی سے بھلائی کریں گے اللہ ہمارے بارے میں بھی ایسے بندے پیدا کر دے گا جو ہم سے بھلائی کریں گے۔ یہ مکافات عمل دنیا میں چلتا رہتا ہے۔ بہرحال سفید اینک لگا کے بیٹھو، سمجھ آئی گل دی؟ ہاں، کیا مراد ہے؟ عشق حقیقی مراد ہے، جس پر انسان کی کامیابی کا مدار ہے، انسان کامیاب ادھر ہی سے ہوتا ہے، اور اگر وہ عشق نہ ہو تو انسان ناکام ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ تو عشق حقیقی کیا ہے کہ بندہ عاشق کی، بندہ معشوق کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ اور میرا اور آپ کا دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، عشق ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا میں اور آپ اس دعوی محبت میں، دعوی عشق میں سچے ہیں؟ کیا میرا تیرا طرز زندگی اس جیسا ہے جس طرح ایک عاشق کا معشوق کے مطابق ہوتا ہے؟ تو تیرا میرا معشوق اللہ اور اس کا رسول ہے، تو اور میں عاشق کہلاتے ہیں، کیا تیرا میرا یہ دعوت صحیح ہے؟ تھوڑا سا اس بارے میں فکر کرنی ہے، غور کرنا ہے۔ اور ذرا اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ انسانوں کو جھنجھوڑ کے اللہ فرماتا ہے خبردار، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کے رسول سے محبت اور عشق کرتے ہو، تو پھر اس بات کے لیے تیار ہو جاؤ جو ہمیشہ عاشقوں کو بھگتنی پڑتی ہے، عاشقوں کو بھگتنی پڑتی ہے۔ یہ جو بدماشی والا عشق ہے نا، کبھی اس پہ نظر دوڑا لو، کبھی ان کو دیکھ لو، یہ پتہ نہیں آدھی رات تک یہ بیچارے جاگتے رہتے ہیں ٹیلی فون کال پہ، ان کو نیند کا ہوش ہی نہیں ہوتا۔ یہ بدماشی جو ہوتی ہے اس پہ آدھی رات تک یہ جاگتے رہتے ہیں، 3 بجے تک جاگتے رہتے ہیں، ان کو نیند کا ہوش بھی نہیں ہوتا۔ کیا ہے؟ وہ عشق میں گرفت ہو گئے جی، عشق میں مبتلا ہو گئے جی، معشوق سے گپیں ہو رہی ہیں۔ جس طرح یہ ہے نا، یہ ہے، اسی طرح اللہ سے بھی محبت ہے، اللہ کے نبی سے بھی محبت ہے۔ کیا سوچنا چاہیے کہ جس طرح ایک دنیا کا جھوٹا عاشق، دنیاوی عاشق، وہ اپنے معشوق کی مرضی پر راتوں رات جاگتا رہتا ہے، کیا یہ سچا عاشق اللہ کے نبی اور اللہ کی محبت میں کیا کچھ کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں دیکھو، جس طرح دنیا کا عاشق ابتلا اور آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، اسی طرح سن لو، جو اللہ کا عاشق ہوتا ہے، نبی کا عاشق ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اور ذرا دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ 20واں پارہ ہے، سورۃ عنکبوت کی پہلی دوسری آیت میں نے پڑھی ہے، سورہ عنکبوت کی پہلی دوسری آیت، توجہ، اللہ نے فرمایا الف لام میم، یہ حروف مقطعات مختلف صورتوں کی ابتدا میں آتے ہیں، ان کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پتہ ہے نا آپ کے مسئلے کا، اللہ کے سوا ان کا معنی کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 2، احسب الناس،
अहसीब अन्नास, बिजली कम है मेरे ख्याल। लोग ये गुमान करते हैं, तवज्जो करें जी, लोग ये समझते हैं कि हम आमन्ना, आमन्ना का माना क्या है कि ए ओ लोगो, आमन्ना का माना ये है कि हम अल्लाह और उसके रसूल से इश्क करते हैं। दावा किया कि हम अल्लाह के भी आशिक हैं, अल्लाह के नबी के भी आशिक हैं। तो सुन लो मेरा रब क्या कहता है, अय्युतरकू अहसिबन नास अय्युतरकू। आप ज़रा तवज्जो मेरी तरफ फरमाएं, वो इंतज़ामिया कर लेगा इंतज़ाम। बिजली चली जाएगी, हम बोलते रहेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, ब्रेक नहीं लगाएगी। आप मसला समझे ज़रा। अहसिबन नास, लोग ये समझते हैं कि हम ईमान लाएंगे, अल्लाह से इश्क करेंगे, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करेंगे, अय्युतरकू, और हमें कुछ भी नहीं कहा जाएगा, हमें आज़माइशों में नहीं डाला जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। दुनिया का आशिक वो भी जब किसी के इश्क में गिरफ्तार होता है तो वो भी आजमाइशों की भट्टियों से गुजर रहा होता है। जब अल्लाह का आशिक है, अल्लाह के नबी का आशिक है, इस पर कैसे आजमाइशें नहीं आएंगी। अब सवाल तवज्जो से सुने, सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया का आशिक आजमाइशों से इसलिए गुजरता है कि उसका माशूक ये देखना चाहता है, यार ये मेरे साथ मोहब्बत करने वाला दावा मोहब्बत में सच्चा भी है या कोई ना। वो ये चेक करना चाहता है कि ये दावा मोहब्बत में सच्चा भी है या कोई नहीं। लेकिन अल्लाह को तो ये बात चेक करने की ज़रूरत है, अल्लाह को ज़रूरत। जनरेटर है नहीं? अच्छा चल रहा है, ठीक। दुआ करो अल्लाह मस्जिद को यूपीएस अता फरमाए। हाँ हुण दुआ की थी ने, दवा ही करे, ठीक है। अल्लाह मस्जिद को यूपीएस अता फरमाए ताकि ये निज़ाम ऑटो पे चलता रहे। जी, दुनिया का आशिक वो तो आजमाइश में इसलिए आजमाया जाता है कि माशूक को पता नहीं होता कि ये जो मेरा आशिक है ये सच्चा आशिक है, ये सिर्फ दावेदार है, ऐसे ही है ना। लेकिन रब्बुल आलमीन जो तो दिलों के हालात को जानता है, और रब्बुल आलमीन बंदे को क्यों चेक कर रहा होता है। फरमाया उलमा ने बड़ी प्यारी बात लिखी है, अल्लाह ताला बंदे को अपनी मोहब्बत और इश्क के अंदर इसलिए चेक कर रहा होता है ताकि दूसरे बंदों को दिखा दे कि यार ये फला हाजी साहब है, इसने लाखों रुपए लगाए हैं और मेरी मोहब्बत में लगाए हैं। और लोगों ये नमाजी साहब है, इसने अपनी रात की नींदें गरम बिस्तर छोड़ा और मेरी मोहब्बत में आके सजदे देने लग गया, ठंडे पानी से वुजू किया और मेरे दरबार पे आके सर टेक रहा है। अल्लाह पाक लोगों को दिखाना चाहता है ये मेरा वो बंदा है जो 15-15, 16-16 घंटे ने अल्लाह के इश्क में आकर भूखा रहना, प्यासा रहना बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत में ये काम छोड़ता नहीं है। अल्लाह दुनिया वालों को ये दिखाना चाहता है ताकि पता चल जाए हकीकी आशिक ये होते हैं जो अपने माशूक खुदा, अपने माशूक
माशूक रसूलुल्लाह की खातिर अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं, अपने माल को कुर्बान कर देते हैं, अपनी इज्जतें दांव पे लगा देते हैं, अपना सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल के लिए कुर्बान करने पर आमादा हो जाते हैं। जो ऐसा कर लेता है, मेरे अल्लाह ने फरमाया लोगों ऐसे बंदों के लिए मैं ऐलान क्या करता हूँ, उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, ये पक्के मोमिन है, अल्लाह ने इन पर ईमान की मोहर लगा दी। लेकिन याद रख मुसलमाना, तू और मैं भी दावेदार हैं ईमान के, इश्क रसूल के और इश्क खुदा के दावेदार हैं। तेरी मेरी कैफियत क्या है? तू और मैं गुनाह नहीं छोड़ सकते, गुनाह नहीं छोड़ते, हम गुनाह नहीं छोड़ सकते। 3 दर्जे हैं गुनाहों के। कितने दर्जे? तवज्जो करना ज़रा, हमारा तौहीद का मौजू है आज, इंशाल्लाह उसी तरह रुख जा रहा है, तवज्जो करना ज़रा। 3 दर्जे हैं गुनाहों के। एक दर्जा जो सबसे आम दर्जा है, आम दर्जा वो क्या दर्जा है कि इंसान गलती करे, गुनाह करे, इस्यान और नाफरमानी मासी का काम करे, अल्लाह का हुक्म तोड़े, ये गुनाह का एक दर्जा है कि बंदा गुनाह का काम करे और गुनाह गलती उससे हो जाए, ये गुनाह का काम है। मसलन कोई झूठ बोल बैठा, कोई किसी का हक दबा बैठा, किसी को गाली दे बैठा, किसी पर ताना मार बैठा, ये आम दर्जे का जो मशहूर उर्फ में मशहूर होता है। इस गुनाह के अंदर एक तो ये गुनाह है कि इंसान आम गुनाह करता है, अल्लाह की हदें तोड़ता है। फिर इससे बढ़कर याद रखो एक वो दर्जा है जिस वक्त कोई बंदा गुनाह करता है तो गुनाह करके उसको एलानिया तौर पर बरमला ऐलान करके लोगों के सामने वो गुनाह अपना बयान करता है या जाहिर करता है। तवज्जो करो, अल्लाह के पाक पैगंबर ने क्या फरमाया, कुल्लु उम्मती मुआफा इल्लल मुजाहिरीन। और लोगों, मेरी उम्मत के सारे गुनाहगारों को अल्लाह मुआफ कर सकता है, लेकिन मुजाहिर को अल्लाह मुआफ नहीं करेगा। मुजाहिर बंदा कौन है? फरमाया मुजाहिर वो होता है जो एलानिया गुनाह करता है। छुप कर कसूर हो गया, छुप कर गलती हो गई, तन्हाई में कोई जुर्म हो सरजद हो गया, तौबा कर ली, माफ हो जाएगा। लेकिन याद रखो मुसलमानों, जो बंदा एलानिया और बरमला गुनाह करता है, लोगों के सामने खुल के गुनाह करता है या गुनाह तो छुप के किया और लोगों को आके बतलाता है, यार आज रात मैंने फलां की इज्जत लूटी है, मैंने फलां काम ये गुनाह का किया है, फलां वीडियो मैंने देखी है, फलां जुर्म मैंने किया है। तन्हाई में किया गया गुनाह एलानिया बता रहा है या एलानिया खुल के गुनाह कर रहा है। मेरे नबी ने फरमाया लोगों, ला कुल्लु उम्मती मुआफा इल्लल मुजाहिरीन, सारे उम्मतियों को अल्लाह मुआफ कर सकता है, लेकिन एलानिया गुनाह करने वाले को अल्लाह मुआफ नहीं करेगा। अब गौर कर जरा, ये कैसा आशिक है, ये कैसा आशिक है, ये कैसा मुहिब है जो एलानिया अपने माशूक की मुखालफत करे। तवज्जो कर जरा, माशूक ने मुतालबा किया, तवज्जो कर, ये मर्जी है माशूक मुराद ले लो। माशूक ने मुतालबा किया, ओ आशिक इश्क का दावा करने वाले फला काम कर, ये नहीं कर सका, नहीं हो सका इससे,
सिर्फ माशूक को पता है और इस आशिक को पता है नहीं कर सका, ये थोड़ा जुर्म है। लेकिन माशूक ने डिमांड की फला काम कर, इसने नहीं किया और लोगों को बता रहा है देखो यार मुझे उसने कहा भी है और मैंने जानबूझ के नहीं किया। या ये है कि वो डिमांड करता रहा माशूक और ये आशिक एलानिया तौर पर लोगों के अंदर बैठकर उसका इनकार करता रहा। ये बंदा बड़ा मुजरिम है। इसी तरह याद रखो, अगर कोई बंदा उस माशूक के हकीकी रब्बुल आलमीन के हुक्म को तन्हाई में तोड़ता है, ये भी मुजरिम तो है पर थोड़ा मुजरिम है। लेकिन कोई बंदा अगर बरमला एलानिया तौर पर अपने माशूक खुदा और नबी की मुखालफत करता है, ऐसा बंदा एलानिया बड़ा मुजरिम है, बड़ा मुजरिम है। क्यों? इसने लोगों के सामने, तवज्जो करो जरा, एलानिया गुनाह करने वाला ये बड़ा मुजरिम क्यों है? इसलिए कि इसने लोगों के सामने अपने माशूक के हुक्म की तजलील की है। गल समझ आइए, अपने माशूक दे हुक्म दी तजलील की थी जा, सबके सामने इसने अपने माशूक के हुक्म को ठुकरा दिया, डिमांड मुतालबे को ठुकरा दिया है, इसलिए ये बड़ा मुजरिम है। और जरा देखो, मेरा तेरा 5-6 फीट का जिस्म है, इस जिस्म पर मेरे रब के क्या क्या अहकामात नाफिज हो रहे हैं। इश्क का दावा करने वालों, ईमान का दावा करने वालों, अपने आप को मुसलमान गर्दानने वालों, अपने आप को मुसलमान कहलाने वालों, अपने आप को मोमिन कहलाने वालों, अल्लाह का वास्ता है गौर करो, फिक्र करो। अगर ये आपका और मेरा दावा इश्क वाला सही है, हक पर मबनी है, तो फिर मेरे बालों से लेकर मेरे पाँव के नाखन तक इस पर अल्लाह का एक एक हुक्म मौजूद होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, बोलो तो सही, होना चाहिए। अब सर के बाल देखो, नीचे आ जाओ थोड़ा सा, जो मेन चीज है पूरे जिस्म का सरदार, वैसे तो इंटरनल तो दिल है ना, जाहिरी जिस्म का सरदार वो बंदे का चेहरा है। यही सारा कुछ इसी पे लिखा होता है। बंदे को परेशानी हो, हाथ नहीं बताता परेशान है, पाँव नहीं बताता परेशान है, दिल अंदर परेशान है, आगे पीछे जितनी भी परेशानी है, तंगी है, ज़हन पे दबाव है, कोई भी है, उसका डिस्प्ले चेहरा है। ऐसे ही है ना, डिस्प्ले चेहरा है, चेहरा बताता है ये बंदा परेशान है। कोई खुशी में है, खुशी के औकात में बंदे के दीगर आज़ा नहीं बताते, बंदे का चेहरा ये डिस्प्ले है। आज फलां साहब बड़ा खुश है, फलां आज मेरी बीवी बड़ी खुश है, चेहरा ये बंदे का डिस्प्ले है। बंदे का सारा कुछ इस पे लिखा होता है, बता देता है बंदे का चेहरा कि ये फलां चीज़ है। मेरे रब ने फरमाया, लोगों जिस तरह मेरे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का चेहरा है, तुम भी अपना चेहरा उसी तरह बनाओ, ताकि दूर से पता चले कि इसके अंदर ईमान है कि नहीं, इसके अंदर इस्लाम की मोहब्बत है कि नहीं, ये दावा इश्क में सच्चा है कि नहीं, इसका डिस्प्ले तुम्हें बताएगा। ठीक है कि नहीं? आपको ज़रा टेक्निकली और मौजूदा दौर के हवाले से बात समझाऊं, इंशाल्लाह समझ आएगी। मोबाइल ख़रीदा आपने, 30,000, 50,000, 20,000, जितने का भी ख़रीदा आपने, सब कुछ ठीक वर्क कर रहा है, वाइब्रेटर भी चल रहा है, रिंगर भी बज रहा है, माइक भी काम कर रहा है, उसका मेन बोर्ड भी सही है, सब कुछ बटन शटन सब कुछ ठीक है, केसिंग भी ठीक है, सारा कुछ ठीक है, पर डिस्प्ले ऑन नहीं हो रहा। ईमानदारी से बताओ, कोई बंदा ये कह सकता है नहीं यार मोबाइल ठीक है, कि वो कहे नहीं, जब तक डिस्प्ले ऑन नहीं होगा उस वक्त तक मुझे कैसे पता चलेगा ये क्या भला है। यार गल लेने इसी तरह ही बात है, तेरा मेरा डिस्प्ले बोलेगा ना
तेरा मेरा डिस्प्ले ये बोलेगा कि इसके अंदर ईमान है कि नहीं है। जब डिस्प्ले पे कोई चीज जाहिर होगी पता चलेगा ये मुसलमान है, ये मोमिन है, ये आशिक है, इसके अंदर तौहीद भी मौजूद है, इसके अंदर मोहब्बत रसूल भी मौजूद है। इसका डिस्प्ले बता रहा है। अगर तेरा मेरा डिस्प्ले नहीं बता रहा तो याद रख तेरे मेरे अंदर का किसी को कोई पता नहीं है। इसलिए फरमाया मुहम्मदी चेहरा बनाओ, और जो बंदे मुहम्मदी चेहरा नहीं बनाते, तवज्जो से सुनना, पिछली बातें याद रखो जो मैं कर रहा हूं। एलानिया गुनाह, एलानिया गुनाह, हसद पैदा हुआ वो दिल में छुपा हुआ है, नजर नहीं आता। बुग़्ज़ पैदा हुआ दिल में है, नजर नहीं आता। झूठ बोला जबान से निकला, जुर्म है, नजर नहीं आता। थोड़ी देर के बाद जितने भी जराइम हैं वो नजर नहीं आते थोड़ी देर के बाद। लेकिन तेरा पूरा चेहरा ये मोहम्मदी नहीं है तो दूर से पता चलेगा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर इस पर कुछ है और ये ऐलान कर रहा है कि भाई ये मोहम्मद का चेहरा लगा के सजा के बैठा है, ये बात जाहिर हो रही है, इस बात से जाहिर हो रहा है अंदर इश्क रसूल मौजूद है। अगर दाढ़ी नहीं है और मैं कहता हूँ मेरे अंदर इश्क रसूल है, तो आप पहला सवाल करेंगे मौलवी साहब इश्क रसूल कित्थे ही? मैं आका मेरे दिल ले चे, तो दिल वाली शय नजर नहीं आती, इत्थे होवे तो पता चले। और भाइयों नाराज ना होना, मैंने इब्तिदा में जो बात कही है मैं दिल पे दस्तक दे रहा हूँ, ज़मीर को हल्का सा जगा रहा हूँ। तो जिस तरह मोबाइल का अलार्म बजता है बंदे को जगा देता है, भाई ऑफिस टाइम हो गया, ड्यूटी टाइम हो गया, नमाज का टाइम, इस तरह होता है ना। हम भी अलार्म है भाई, अलार्म है, दस्तक दे रहे हैं भाई थोड़ा सा बेदार हो जाओ। इश्क रसूल का दावा, इश्क खुदाबंदी का दावा ये तो कर रखा है, इसी का नाम ईमान है, इसी का नाम ईमान है। और ज़रा देखो कि क्या इश्क रसूल के दावे में, इश्क खुदाबंदी के दावे में हम सच्चे भी हैं या कोई नहीं। अगर कोई बंदा अल्लाह की मशीयत, अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ करता है, अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करता है, तो सुन लो ये बंदा इश्क में झूठा है। अब उसके दर्जात है, एक बंदा छुप कर ना फरमानी करता है वो तो झूठा, वो तो मुजरिम है, पर हल्के दर्जे का मुजरिम है। जो एलानिया गुनाह करता है, रब की नाफरमानी करता है, भाइयों याद रखो ये बंदा बड़ा मुजरिम है। इसीलिए मैंने आपको हदीस सुनाई है, मेरे नबी ने फरमाया कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीन। और लोगों मेरे हर उम्मती की बख्शिश हो सकती है लेकिन मुजाहिर की नहीं हो सकती। मुजाहिर का मतलब क्या है? एलानिया गुनाह करने वाला। अब ये एलानिया गुनाह है ना दाढ़ी मुड़ाना, है ना एलानिया गुनाह है भाई, खुदा का वास्ता है थोड़ा सा अपने आप को, थोड़ा सा अपने आप को इस्लामी ढांचे में ढालो तो सही। आज हम बड़े दूर हैं दीन से, दावे हमारे बड़े हैं। कुछ लोग तो सिर्फ तौहीद के लेवल पे खुश हैं, कुछ मुसलमानी के लेवल पे खुश हैं। भाइयों हमें फिक्र करनी है, फिक्र करनी है ना। आओ ज़रा आगे चलो ज़रा। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा चेहरा बनाना ये ज़ाहिरन इस बात की अलामत है मैं आशिक रसूल हूँ। ठीक है, ज़ाहिर बंदा बनाए, अंदर मेरा रब आप बंदे का साफ कर देता है। बंदा ज़ाहिर भी ना बनाए अंदर कैसे साफ होगा? इसलिए भाइयों दाढ़ी मुंडाना एलानिया जुर्म है, एलानिया गुनाह है, एलानिया अपने माशूक की बगावत है, एलानिया अपने माशूक के हुक्म की तजलील है। अल्लाह का वास्ता है मुसलमानों एलानिया मुजरिम ना बनो, एलानिया मुजरिम ना बनो। गलती छुप के हो जाए उसकी भी मुआफ़ी मांग लो, लेकिन एलानिया मुजरिम ना बनो। ये ऐसा जुर्म है एलानिया, ये ऐसा जुर्म है दाढ़ी मुंडाना कटाना, ऐसा जुर्म है। याद रखो तुम नमाज पढ़ रहे हो तब भी ये जुर्म लिखा जा रहा है, तिलावत कर रहे हो तब भी ये जुर्म लिखा जा रहा है, हत्ता के बैतुल्लाह का तवाफ कर
रहे हो उस वक्त भी ये जुर्म लिखा जा रहा है। आप पूरा दिन रोजे के साथ गुजार रहे हो तब भी ये जुर्म लिखा जा रहा है। हत्ता कि जिस वक्त कोई बंदा नींद कर रहा होता है उसके अमाल नहीं लिखे जाते, नींद कर रहा होता है अमाल कोई नहीं लिखे जाते, लेकिन ये ऐसा जुर्म है जो कंटिन्यू रेगुलर है। अगर आप नींद भी कर रहे हैं ये गुनाह तब भी लिखा जा रहा है। एलानिया बगावत है। इससे वापस आ जाओ। ईमान का जो दावा किया है, ईमान का जो दावा, ईमान का और इश्क का जो दावा किया है इस पर पूरे पूरे उतरो, साबित कदम रहो। अल्लाह ने क्या फरमाया, ओ लोगो अहसिबन्नास, लोग ये समझते हैं कि हम ईमान का दावा करेंगे और हमारी आजमाइश नहीं होगी ना। अल्लाह ने फरमाया वाला कद फतन्ना, मुझे अलबत्ता तहकीक, मुझे कसम है अपनी ज़ात की, मैं ज़रूर आजमाऊंगा। अल्लाह ज़रूर आजमाएगा। ये भी आजमाइश है। बीवी कहती है दाढ़ी ना रख, मुआशरा कहता है दाढ़ी ना रख, लोग मौलवी कहेंगे, सीनियर है बॉस है वो कहता है दाढ़ी ना रख, मौलवी लगेगा, फंडामेंटल कहलाएगा, इस तरह दकियानूसी सोच वाला कहलाएगा। ये सारे के सारे ये बात कह रहे हैं, लेकिन आगे से मुसलमान कहलाने वाला ये कहता है यार मुझे अल्लाह से इश्क है, मुझे नबी से इश्क है, मैं सब कुछ तो कुर्बान कर सकता हूं लेकिन अपने माशूक की बात को ठुकरा नहीं सकता। मैंने कहा जरा दुनिया के मजाजी इश्क वालों को देख लिया करो। माँ को नाराज कर देते हैं, अब्बा जी को नाराज कर देते हैं, भाइयों बहनों की मुखालफत बर्दाश्त कर लेते हैं, खानदानों से टक्कर ले लेते हैं, लेकिन अपने माशूक का दामन छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। वो तो मजाजी इश्क है, वो तो बदमाशी है, वो तो फराड है, वो तो नफसानी ख्वाहिशात है। अल्लाह का वास्ता है हमारा तो दावा सच्चा दावा इश्क का है, सच्चा है ना। अल्लाह नाल मोहब्बत, अल्लाह दे नबी नाल मोहब्बत, हमारा तो ये दावा सच्चा इश्क का दावा है। हमें भी चाहिए जिस तरह वो झूठा दावा करने वाला सबसे टक्कर ले लेता है लेकिन अपने माशूक की मुखालफत नहीं करता, हमें भी चाहिए हम सबसे टक्कर बर्दाश्त कर लें पर अपने माशूक के हकीकी की हुक्म की मुखालफत कभी ना करें। अल्लाह तफसीली वाक़या है, उसका एक टुकड़ा मैं बयान करता हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवानी चल रहे हैं, इब्तिदाई स्टेप्स हैं, बिल्कुल इनिशियल स्टार्टिंग जवानी है, जवानी की इब्तिदा है। ज़लीखा ने हमला किया, बच गए, सारा वाक़या सुना हुआ आपने। चलते चलते आखिरकार जेल में चले गए। जेल के अंदर काफ़ी अरसा गुजर गया, हत्ता के बादशाह वक़्त को ख्वाब आया, 7 गायें हैं और इस तरह सारा तफसीली वाक़या 12वें पारे के आखिरी 2 रकूओं में, आखिरी से पहले रकू में मज़कूर है। खैर ख्वाबों की ताबीर पूछने के लिए बादशाह वक्त बड़ा मुतफक्किर हुआ, फिक्रमंद हुआ, वजीरों से पूछना शुरू किया। बिलाखिर एक उनमें से बंदा जो जेल से रिहा होके आया था उसने कहा यार हमारा जो जेल का एक साथी था यूसुफ उसका नाम था, जो इस जुर्म के अंदर जेल में फंसा हुआ है, कैदी है, वो बड़ा माहिर है ताबीरें बताने का,
उससे पूछ लेते हैं। बादशाह वक्त ने कहा जाओ जाकर उसको मेरे पास ले आओ। उससे पहले ताबीर पूछो, ताबीरें बतला दी। जब ताबीरें बतला दी गई, यूसुफ अलैहिस्सलाम की ताबीरें सुनकर बादशाह हैरान हो गया। यार इतना बड़ा मुअब्बिर, इतनी बेहतरीन ताबीर देने वाला, इतने इल्म और फन वाला, इसको तो जेल में नहीं होना चाहिए। नुमाइंदे भेजे, जाओ वापस ले आओ उसको। नुमाइंदे गए यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास और यूसुफ अलैहिस्सलाम को पैगाम दिया कि जनाब आपको वक्त का बादशाह बुला रहा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया, तवज्जो कर जरा। यूसुफ अलैहिस्सलाम तुमने क्या किया? वक़ालल मलिकु तूनी बी अस्तखलिसु लिनफ्सी, वक़ालल मलिकु तूनी बी फलम्मा जाअहुर रसूल क़ाल इरजिअ इला रब्बिका फसअलहु मा बालुन निस्वतिल्लाती क़द्दाना ऐदियहुन्ना इन्ना रब्बी बिकैदिहिन्ना अलीम। यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलवाया गया। जनाब वक़्त का बादशाह बुला रहा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया इरजे इला रब्बिक, वापस चले जाओ अपने बादशाह के पास। उससे कहो मैं आऊँगा बाद में, पहले मेरा मामला क्लियर कर। वो जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया था ज़लीखा ने, हालांकि हमला भी ज़लीखा ने किया और इल्ज़ाम लगाया था, उसकी वजह उसके बाद औरतों ने उंगलियां काटी थी। ये सारे वाक़े में चीज़ें मज़कूर हैं, आपको पता है। उंगलियां काटी थी, ये तमाम तर जितने भी मराहिल गुजरे हैं, मैं बादशाह वक़्त से गुजारिश करूंगा पहले इसको क्लियर करो, तब जाकर मैं आऊँगा, तब मैं आऊँगा। हाँ बात तवज्जो से सुनो ज़रा। शक वाली चीज़ों से भी बचना चाहिए, शक से बचना चाहिए। जहाँ कोई शायबा शक का कोई गुंजाइश हो ना, फौरन मामला क्लियर कर देना चाहिए। बात समझो ज़रा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एतिकाफ पे बैठे हुए हैं मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर। घर 7 अज़वाज के घर हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात बैठे हैं, लेट नाइट, रात के वक़्त आपकी अज़वाज में से कोई ज़ौजा आपके पास किसी काम से आई। ठीक है, मसले का तो आपको पता ही है ना कि एतिकाफ़ की हालत में बंदा बीवी के साथ मुबाशरत नहीं करता। ला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, लिहाजा वो इशू नहीं था। औरत ज़ौजा मोहतरमा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास किसी काम से आई और बातों में बैठ के कोई बात होने लग गई। इतने में 2 सहाबा रास्ते से गुजरे, सामने गली वाले दरवाजे के सामने गली से। तो उन्होंने देखा ऐसे नबी अलैहिस्सलाम की तरफ, तो साथ औरत बैठी हुई थी, तो उन्होंने फ़ौरन नज़रें नीचे कर लीं और तेज़ कदमों से चल पड़े। भाई नबी अलैहिस्सलाम औरत के साथ बैठे हैं। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ौरन दौड़ के मस्जिद से बाहर निकले और उन दोनों सहाबा को बुलाया। तवज्जो करना ज़रा। दोनों सहाबा को बुलाया और फरमाया सब्र करो भाई, रुको। वो दोनों रुक गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये जो मेरे साथ बैठी हुई है ये मेरे बीवी सफ़िया है। तो सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह माज़ अल्लाह, हमारे दिल में आपके बारे में गलत ख्याल कभी आ ही नहीं सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया शैतान बड़ा बदमाश है, शैतान बड़ा दुश्मन है। हो सकता है दिल में आ जाता यार पता नहीं कौन औरत बैठी थी, कौन थी। तो मैं इसके अजाले के लिए तुम्हें क्लियर कर रहा हूँ, मेरे साथ बैठने वाली मेरी ज़ौजा है। यानी मैं ये हदीस बताने का मतलब ये है, इतना बंदे को ट्रांसपेरेंट और साफ रहना चाहिए। जहाँ कोई शक शुबा की गुंजाइश पैदा हो रही है, मामला क्लियर कर दो भाई, मामला ऐसे है ऐसे है। बहुत सारे फितनों से बंदा बच जाता है। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया इरजे इला रब्बिका, वापस चले जाओ अपने बादशाह के पास, उससे पूछो माँ
बालुन निस्वतिल्लाती कत्ताना ऐदियहुन्ना, और जो उंगलियां काटने वाली औरतों की वो जो हकीकत है जली, ये सारे वाक़े की हकीकत क्या है? सारे वाक़े की हकीकत क्या है? ये 12वें पारे का आखिरी आयतें हैं, 3 आयतें, घरों में जाके देख लेना। इन्ना रब्बी बिकैदिहिन आलीम, साथ इस बात की भी वजाहत कर दी है, और बच्चाए वक़्त मैं इसलिए पूछवा रहा हूँ ताकि तेरे सामने मामला क्लियर हो जाए। बाकी रहा मसला, इन्ना रब्बी बिकैदिहिन आलीम, मेरा रब तो इन औरतों के मकर से खूब वाकिफ है। इन्होंने जितनी भी चालें चली हैं सबसे मेरा रब वाकिफ है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें क्लियर करना चाहता हूँ मामला कैसा था। खैर, बादशाह ने औरतों को बुलाया तो सबसे बड़ी फर्स्ट लेडी खातून अव्वल है बीबी ज़लीखा। कुछ लोग ऐसे बेवकूफ़ हैं, वो कहते हैं जी बाद में तौबा तैब हो गई है तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस दे नाल निकाह कर लिया है। ये टोटली झूठ है, याद रखो। अल्लाह के अंबिया नबी रसूल जितने भी हैं उनके घरों में आने वाली अज़वाज वो कभी बदकार नहीं हो सकती। ज़लीखा तेरी बीबी नज़र आई है कि उसका इंतखाब तूने यूसुफ के लिए कर लिया, माज़अल्लाह। ये सारा फ्रॉड, धोखा है, ये गलत बयानी है, ये झूठ है। नबी के साथ कोई उसका निकाह नहीं हुआ। गल समझ आई? अच्छा, हजरत वक़्त के अजीज़ मिस्र ने बादशाह वक़्त ने बुलाया सारी औरतों को, और जिन्होंने उंगलियों पे छुरियां चला दी थी फराडिया, और वो जो उनकी सरगना थी ज़लीखा वो भी आ गई। काला बादशाह वक़्त कहने लगा, माँ खतबुकुन्ना इज़ रावतुन्ना यूसुफ अन नफ्सिही। अच्छा ये बताओ, जब तुम यूसुफ को अपनी तरफ माइल करना चाह रही थी उस वक़्त का मामला क्या है? दसो भाई, अब क्लियर करो इस बात को, क्या मामला था? आगे से कहने लगी सारी औरतें, कुल्ला, सारियों ने कहा, हाशा लिल्लाह, अल्लाह की जात की कसम है, मा अलिमना अलैहि मिन सू, अल्लाह की जात की कसम है हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदर एक राई के दाने के बराबर भी बुराई कोई नहीं देखी है। याद रखो, अल्लाह का नबी मासूम होता है, मासूम होता है, गुनाहों से मासूम। आपको एक जुमे पे मैंने 3 चीज़ें बताई थी। टाइम, ओहो टाइम पूरा हो गया। अच्छा नहीं बताता आज, वो पहले बताई थी, फिर कभी इंशाल्लाह बता देंगे। आप ये बात पूरी कर लें। फरमाया कुल हाशा लिल्लाह मालिमना अलैहि मिन सू, अल्लाह की ज़ात की कसम है कि हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम में एक ज़र्रा बराबर भी ऐब और गुनाह नहीं देखा। आगे कहती है, कालत इमरातुल अजीज़, साथ बड़ी बीबी खड़ी है, फर्स्ट लेडी खातून अव्वल, कालत इमरातुल अजीज़, वो जो ज़ौजा है अजीज़ मिस्र की वो खड़ी है। अल-आना हसल हक, कहती है हुण तो सारी गल वाज़े हो गई है, हुण तो सारिया चीज़ां दे नखेड़े, हमारी सरायकी में ये कहते हैं ना, सारी चीज़ें ओपन हो गई, सारी हकायक वाज़े हो गए, सारी चीज़ें वाज़े हो गई। अल-आना हसल हक, अब तो हक बात वाज़े हो गई है, तो मैं भी तुम्हें बताऊं, मैं सारियां दी वडेरी ते सरगना, मैं तुम्हें बताती हूँ, अना रावतु अन नफ्सिही, वो जो पहला पहला दरवाजे बंद करके यूसुफ को फंसाने वाला किरदार था वो मैंने किया था।
अना रावतुहु अन नफ्सी, मैंने यूसुफ को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की, लेकिन सुनो व इन्नहु, ओ मेरे खामा साहब आप सारी और तो सुन लो, व इन्नहु लमिन सादिकीन, वो सच्चा था, उसमें जरा बराबर भी है। हाँ, इसलिए याद रखो अल्लाह के नबी मासूम होते हैं। मौजू हमारा क्या है? जब बंदे का इश्क होता है अल्लाह के साथ, ईमान आता है बंदे का, बंदे के अंदर, बंदा अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता। ये बात पूरी कर लूँ। ज़ालिका, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़ालिका, ये सारा मामला ओपन क्यों कराया मैंने? जेल से निकलने से पहले ये सारा मामला ओपन मैंने क्यों कराया? वो खुलेआम इसका ऐलान क्यों करवाया? क्यों? इसलिए ज़ालिका लियालमा, ताकि बादशाह वक़्त को पता चल जाए, जो मुझे बेटा बना के लाया था, मंडी से खरीद कर अपना बेटा बना के घर जिसमें ने रखा था, लियालमा, ताकि उसे पता चल जाए, अन्नी लमाखुनुहु बिल गैब, कि उसे पता चल जाए उसकी गैर मौजूदगी में मैंने उसके घर में खयानत नहीं की है। नहीं, अपनी ज़बान माना करते मज़ा हो रहा है, ताकि वक़्त के बादशाह को पता चले जिसके घर का मैं नमक खा रहा था, उसके घर में मैंने नमक हरामी कोई नहीं की। हम ये कह सकते हैं जिसके घर में ज़्यादा आमद जामद हो जाए उधर ही नज़र बुरी हो जाती है, अल्लाह माफ़ करे। वो फिर चौथे दिन कहता है मैनू इश्क हो गया है। ये बदमाशी है कि नहीं? ये नमक हरामी है। जिसका खाए उसी के घर में बदमाशियाँ, ये मुसलमानों का शेवा नहीं है। जिसके पीछे वाक़े में ये सारी तफसील गुजर गई है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यही कहा था, इन्नहु रब्बी अहसन मसवाया, मेरा रब है जिसने मुझे बादशाह के घर में ठहराया। दूसरा माना ये किया उलमा ने, इन्नहु रब्बी, ये जो बादशाह है ये मेरा मोहसिन है, अहसन मसवाया, इसने अपने घर में मुझे ठिकाना दिया है, मैं कैसे इसके घर में ये गलत काम कर सकता हूँ। खैर, फरमाया व अन्नल्लाह ला यहदी कैदल खाइनीन, ते जेरा बंदा, तवज्जो नाल, जेरा बंदा इयो जियां खयानतां करे, जिसका खाए उसी के घर में नमक हरामी करे, वो अन्नल्लाह ला यहदी, इयो जे बंदे दूं अल्लाह हिदायत कदी नहीं देंदा होंदा। मरते मर जाओ और रहमानिया मस्जिद वालो, मरते मर जाओ, जिंदे घरों निवाला खो ओदे नाल गद्दारी कभी ना करो। खैर, आगे है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जब ये मामला क्लियर हुआ तो फरमाने लगे, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, और लोगों मैं अपने नफ्स को बरी नहीं समझता। ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आजिज़ी है। नबियों को अल्लाह ने पाक रखा होता है, लेकिन तवज्जो करो, हमारे लिए ये बात है कि हम ये ना कहें यार मैंने आज तक ज़िना नहीं किया तो मैं बड़ा कमाल का आदमी हूँ, है मैंने नफ्स दे धोखे दे अंदर मैं नहीं आया, मैं बड़े कमाल का आदमी हाँ, ये दावा कभी ना करना। क्यों? इस वास्ते इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सूए, हमेशा इंसान का नफ्स इंसान को बुराई की तरफ खींच के ले जाता है, इल्ला मा रहीमा रब्बी, और जिस पर अल्लाह रहम कर दे वही बच सकता है। इसलिए भाई मैंने शुरू में जो दावा किया कि हमारा दावा है कि हम आशिक हैं अल्लाह के नबी के, उसके अंदर ये बात हमें मलहूज रखनी चाहिए। जब हम दावेदार हैं आशिक हैं अल्लाह और उसके रसूल के, तो आशिक वही होता है जो अपने माशूक की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। जब हमारा रब हमारा माशूक है, हमारा नबी हमारा माशूक है, हमारी ज़िंदगी उनके अहकामात के
کے تابع ہو، نافرمانی نہ ہو، چھپکے سے تنہائی میں اگر غلطی ہو جائے فوراً توبہ کر لو، یہ چھوٹا جرم تھا معاف ہو جائے گا، لیکن برملا اعلانیہ گناہ نہ کرو۔ کیوں؟ حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امتی معافی الا المجاہرین، میرے ہر امتی کی بخشش ہو سکتی ہے لیکن جو اعلانیہ گناہ کرے اس کی بخشش کبھی نہیں ہو سکتی۔ دل سے اعلانیہ گناہ کبھی نہ کرو، ٹھیک ہے؟ جو انسانی تقاضے سے ہو جائے غلطی تو فوراً توبہ کر لو، یہی مسلمان ہے، یہی انسان ہے۔ اسی کو کہتے ہیں خطا کا پتلا کہ غلطی ہو گئی توبہ کر لی، لیکن مصر رہنا، اپنے گناہ پر پکا رہنا اور اعلانیہ گناہ کرنا، یا گناہ تو چھپ کے کیا، لوگوں کو بتانا، دوستوں کو بتانا میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، یہ بہت بڑا مجرم ہے، قیامت کے دن بخشش سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔